हेलो क्लास 7th, हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। हम हमारी प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में किस तरीके से होता है। हमें पता है कि ह्यूमन सिस्टम जो होता है, ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। उनमें से एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ये जो सिस्टम होता है ह्यूमंस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, मेन वर्क क्या करते हैं हम लोग कि जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर की एयर अपने बॉडी में लेते हैं, जिसमें से हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑर्गन्स उस एयर में से ऑक्सीजन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस ऑक्सीजन को अलग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इसके लिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ऑर्गन्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं। इसी रेस्पिरेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। There are mainly 5 organs in this. The first is the nasal cavity. Nasal cavity includes the nostrils, the nose part of a human being, through which the air enters through which air enters in the body. After nasal cavity, then the air enters from the nasal cavity to the then it moves towards the larynx. Larynx, after larynx there is a trachea part. Trachea is also known as windpipe. Through which the air enters from nostril to larynx, then larynx to trachea. After reaching trachea windpipe, then the air passes towards the bronchi, which itself divides into 2 parts and connect to the 2 lungs of a human being, and then bronchi transfer that air towards the lungs. And this is the lungs. There in the human respiratory system a pair of lungs is present there. Pair means there are 2 lungs by which the processing of respiration has been done. In this process, the diagram has been given in your book, in which everything is explained, which part is known by which name. The first thing, the nostril, this is the nasal cavity. When we talk about the nasal cavity, what is the process of breathing? When we breathe the air from the atmosphere by the part nostrils, which includes in the nasal cavity, then the air enters from the nostril. Nostril is the nose part of a human being. The nose consists of some fine hairs which prevents, what does the hair present in the nose does? The main function of the hairs which present on the nose, they filter the air which we take in. By the process, they remove the dirt and the other pollen grains and the dust particles. They stop the dust particle over at the nose part of the human being. Then they pass that air towards the larynx part, which through a passage. That passage is known as the air passage. And after that, when the air passes through the nasal passage, the air becomes warm and moist, and then enter to the lungs, and then to the through the trachea, it enters through the lungs with the help of trachea and the bronchs. Each bronchus enters a lungs. A bronchi divided into 2 parts, and each is entered towards one lung and other lung. And the lungs are, what are the structure of lungs? Lungs are the sponge-like structure. They are sponge-like sac structure, which is fill most of the chest cavity, and they are protected by the rib cage, flexible rib cage, and at the bottom of the chest cavity there is a muscular sheet of muscles is present, which is known as diaphragm. In lungs, bronchs branches out into small tubes which is known as bronchioles. At the end of the bronchioles there are alveoli are present. These alveoli are the small air sacs, and this air sacs surrounds the blood vessels, and the blood vessels absorb the oxygen from the air. Then they observe the oxygen, and they give it carbon dioxide back to the vessels, and by this the breathing system take place, and by this the taking of oxygen and giving out of carbon dioxide has been done.
जब हम रेस्पिरेशन का काम करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले चीज़ होती है नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या होता है, हमारा जो नोज पार्ट होता है, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, यानी कि जो होल्स हमारे नोज में प्रेजेंट है उसको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं इसके थ्रू जो एयर है एटमॉस्फेयर से वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जो नोज़ है उसमें कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो हेयर होते हैं नोज़ में वो क्यों पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो आपने एयर ब्रीथ की है उसमें बहुत सारे क्या होता है कि आपने जो एयर ली है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल, मिट्टी, कचरा, बहुत सारी छोटी छोटे बारीक पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारी नोज़ के जो हेयर्स होते हैं उस डस्ट पार्टिकल को हमारी नोज़ में ही रोक लेते हैं। ओनली जो फ्रेश एयर है, ओनली जो क्लीन एयर है उसको ही आगे जाने देते हैं। नसल कैविटी के बाद जो हमारी एयर होती है उसके बाद एक पैसेज बनता है, यानी कि नसल कैविटी जो लैरिंक्स होता है वो एयर का एक पैसेज बनाता है। उसके थ्रू हमने जो एयर लिए वो नोज़ के थ्रू होके उस पैसेज में जाती है और उस पैसेज में होने के बाद उस पैसेज के थ्रू पहले वो ट्रैकिया में जाती है, दैट इज़ विंड पाइप। विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप के बाद क्या होती है वो ब्रोंकीज में चली जाती है। ब्रोंकीज क्या होती है कि ये एक मसल्स होती हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में लंग्स के एक पेयर पाया जाता है, यानी कि 2 लंग्स होते हैं। तो ये ब्रोंकी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हर एक लंग से कनेक्टेड हो जाती है, एक एक पार्ट एक एक लंग से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही एयर विंड पाइप में गई, विंड पाइप के बाद ब्रोंकिस में जाती है, फिर ब्रोंकिस के थ्रू ही किस में जाती है, ये लंग्स में एंटर करती है। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकीज होती है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना, वैसे ही क्या करती है अंदर जाके बहुत सारे इसमें से वेसल्स बनती है, ब्लड वेसल्स बनती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। और उन ब्रोंक्यूल्स के एंड में छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स नहीं, छोटे छोटे एयर गैप्स पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं। उन सैक्स में यानी कि उन कैविटीज़ में क्या होता है कि वो उनको एल्वोली बोला जाता है जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में पाए जाते हैं। और उनका ही मेन काम होता है कि जो हमने एयर बाहर से ली है उसमें से वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और उसको फ्रेश करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उन्हीं वेसल्स को दे देती हैं। और इस तरीके से वापस वहाँ से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एल्वोली ने बाहर दे दी है वेसल्स को, वो वेसल्स उसको वापस लंग से होते हुए, ब्रोंकियल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए वापस हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना ब्रीथिंग सिस्टम करते हैं और ऐसे हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में भी हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने एयर अंदर ली और किस तरीके से वो मूव कर जाती हैं बाहर। हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अराउंड रिबकेज पाई जाती है, रिबकेज बोन्स होती हैं जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के किसी भी हार्ड चीज़ से, किसी भी हार्मफुल चीज़ से, कि किसी भी तरीके का शॉक जो होगा वो हमारे लंग्स पे डायरेक्टली ना लगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे हम पढ़ेंगे डायफ्राग्राम। हमें पता है लंग्स के नीचे क्या होता है, एक मस्कुलर शीट पाई जाती है, उस मस्कुलर शीट को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम कहते हैं। और ये डायफ्राग्राम जो होता है वो फ्लोर पे प्रेजेंट, जो हमारे चेस्ट होता है उसके नीचे फ्लोर पे यानी कि लंग्स के नीचे की फ्लोर पे पाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो चीज़ होती है, पहला इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपने सांस ली, ठीक है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो क्या करेंगी, वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और बाहर की तरफ मूव करती हैं। और लेकिन जो डायफ्राग्राम होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि आप कई बार फील करते हो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट थोड़ा अपवर्ड हो जाता है, तो यानी कि हमारी रिबकेज क्या करती है, ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ। ऐसे नहीं कि भाई हमेशा के लिए ऊपर चलेगी, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर हो जाती हैं, आउटवर्ड यानी कि थोड़ा बाहर की तरफ झुकती हैं, और जो डायफ्राग्राम होता है वो नीचे चला जाता है। जब हम ब्रीथ जो हमने ले ली वो तो हमारे इनहेलेशन प्रोसेस हो गया। अब जब हमने ब्रीथ हम रिलीज़ करते हैं, वापस बाहर देते हैं, वापस उसको छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करेंगी, और इनवर्ड मूव कर जाती है, और डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। कई बार आप अपनी बॉडी को ऐसे टच करके देखो, जब आप टच करते हो तो सांस लोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और डायफ्राग्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और एक्सहेलेशन में वो नीचे की तरफ मूव करता है और डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, ओके।
समझ में आया? ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में एक जो नॉर्मल पर्सन है यानी कि एडल्ट पर्सन है वो कितनी बार सांस लेता है। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो 1 मिनट में एक नॉर्मल पर्सन, हम जो नॉर्मल इंसान हैं या फिर जो एडल्ट हैं, वो 15 to 18 मिनट्स 15 to 18 टाइम्स पर मिनट में वो सांस लेते हैं। यानी कि 1 मिनट में आप 15 से 18 बार सांस लेते हो और छोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है वही उसकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। कि जितनी बार भी एक आदमी ने 1 मिनट में कितनी बार उसने ब्रीथ ली, 15 टाइम्स ली, 18 टाइम्स ली या कम ली या ज़्यादा ली, तो वो उसकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। हमारी ब्रीथिंग रेट तब बढ़ती है जब आप कभी देखते होंगे कि आपने बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग की है या फिर आप दौड़ के आए हो या फिर आपने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं या एक्सरसाइज की, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट, हमारी जो सांस लेने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। हम बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। आफ्टर दैट सेकंड इज अ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हमने बात कर ली कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में किस तरीके से होता है। अब हम बात करें कि डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से किया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। First we are going to talk about through the skin and the cell membrane. Those organisms who breathe through their skin or the cell membrane. First we are going to talk about the unicellular organism. Those which are unicellular organism or microorganism, amoeba or a paramecium, they breathe through the cell membrane. Because they are single cell organism, so they consist of a cell membrane, and the cell membrane helps them to breathe and to exchange the gases by their cell membrane. After that there is an earthworm. Earthworm is they breathe with the help of their skin. By their skin is always get moisture. They are always, and this help in to exchange their oxygen and the carbon dioxide. With the help of this they can exchange their gases. नाउ देयर इज स्किन। जब हम स्किन और सेल, सबसे पहले हम जब बात करते हैं एनिमल्स में, तो सबसे पहली चीज़ आती है स्किन के थ्रू और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कि जो उनकी स्किन होती है उससे कैसे सांस लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन से कौन सी सांस लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। यूनिसेलुलर जो कि सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेन यानी कि इनके सेल की जो आउटर लाइन होती है, वॉल जो होती है, ये उससे ही सांस लेते हैं, यानी कि उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो काम होता है वो उसके थ्रू करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने गैसेस को एक्सचेंज किया, लिया और दिया, तो वही प्रोसेस ये किसके थ्रू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है उसकी जो स्किन होती है वो उसी स्किन के थ्रू अपना सांस लेने का काम यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि जो स्किन अर्थवॉर्म जो होते हैं उनकी स्किन जो होती है यानी कि उनकी जो ऊपर की चमड़ी जो होती है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, चिपचिपी और गीली रहती है। वो चिपचिपी और गीली क्यों रहती है? क्योंकि वो उनको हेल्प करती है ब्रीथ करने में। अगर अर्थवॉर्म आपने देखा होगा मेनली बारिश के टाइम ही बाहर निकलते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट होते हैं। अगर वो धूप के टाइम में सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और इस वजह से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। इसीलिए मेनली वो मॉइस्ट एरिया में और मॉइस्ट क्लाइमेट में ही बाहर निकलते हैं और ये ही उनको हेल्प करता है उनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। नेक्स्ट आते हैं एयर होल्स के थ्रू, कि एयर के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके थ्रू कैसे सांस लिया जाता है। हम इंसेक्ट्स की बात करें, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोचेस, मॉस्किटोज and house flies, grasshopper. They consist of a respiratory system. In their respiratory system, they mainly consist of a trachea, and trachea is divided into spiracles. It consists of the spiracle opening. What does it consist of? That trachea makes a network-like structure from the two air tubes, makes a branches-like structure, and then they have a spiracles on their tiny holes on their body by which they exchange their gases.
इंसेक्ट्स में क्या होता है कि इंसेक्ट्स में भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि क्या होता है कि ट्यूब्स पाई जाती हैं बहुत सारी। वो जो ट्यूब्स होती हैं वो एक नेटवर्क को फॉर्म करके रखती है, और वो नेटवर्क क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है इंसेक्ट्स में। और इन ट्रैकिया के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर जो उनकी बॉडी होती है ट्रैकिया में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग पाई जाती है, होल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। उन होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं। ये जो होल्स होते हैं, स्पैरिकल्स जो होते हैं, यही इंसेक्ट्स को हेल्प करते हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें, सांस ले सकें और सांस मतलब ब्रीथ कर सकें और ब्रीथ को रिलीज़ कर सकें उनकी बॉडी के थ्रू। ये उनकी बॉडी पे पाए जाते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा फिश। फिश आप लोगों को पता होगा, फिश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर का काम करती है। बिकॉज फिश में गिल्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि गिल्स जो होती हैं, फिशेज जो होती हैं वो हमेशा वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो डिज़ोल्व वाटर, जो पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो उसी को लेती हैं, और गिल्स जो होती हैं वही वो काम करती हैं कि वो ऑक्सीजन लेती हैं उस वाटर में से, पानी में से ही वाटर ऑक्सीजन लेती हैं, और उनके अंदर ऑप्रिक्यूलम स्ट्रक्चर पाया जाता है फिश के अंदर, और ऑप्रिक्यूलम के थ्रू वो उस एनर्जी को, उस गैस को, उस एयर को रिलीज़ कर देती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, गिल्स जो होती हैं वो लार्ज फिलामेंट्स से बनी होती है ना, बहुत सारे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये कैपिलरी स्ट्रक्चर ही क्या काम करता है, फिश को ऑक्सीजन लेने का काम करती है वाटर से, और रेस्पिरेशन के टाइम जब वाटर माउथ में एंटर कर जाता है वो धीरे धीरे गिल्स में पास होता है, और गिल्स में होने के बाद ऑक्सीजन लेने के बाद वो मतलब ऑप्रिकुलम के थ्रू वो बाहर रिलीज़ कर देती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स जैसे कि हमने ह्यूमंस में पढ़ा कि ह्यूमंस में ही लंग्स, ह्यूमंस भी किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो ह्यूमंस की तरह ही बहुत सारे जैसे कैट्स हैं, डॉग है, मंकी है, ये सारे मैमल्स होते हैं, और इन सारे मैमल्स में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। जिस तरीके से ह्यूमंस में पाया जाता है वैसा ही इनमें लंग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है कि जब प्लांट्स का रेस्पिरेशन हम देखते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फर्स्ट होता है लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ये 3 पार्ट होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पायर करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट की बात करें तो प्लांट हमें पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको भी ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है रेस्पिरेशन में, अगर हम देखें कि प्लांट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं वर्क, उनमें सबसे पहले होता है कि सबसे पहली चीज़ जो उनमें थ्रू करते हैं वो करते हैं थ्रू द लीव्स। लीव्स के थ्रू वो अपना काम करते हैं। फर्स्ट है थ्रू देयर लीव्स। लीव्स में हमें पता है कि लीव्स में जो प्लांट में जो होता है, हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें लीव्स के थ्रू यानी कि स्टोमेटा जो होता है उसी के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो लीव्स में सबसे पहले क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, और ये जो स्टोमेटा होता है यही मेन काम क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो काम है प्लांट में वो मेनली यही करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है प्लांट में, स्टोमेटा करता है। ठीक है, अब बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर ली, एयर लेने के बाद उसने क्या किया, एयर लेने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। स्टोमेटा जो होता है उसके बाहर गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहर के हार्मफुल चीज़ों से, और ये एक स्टोमेंटल एपेरेटिक्स बना लेते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोमेटा तो जो होता है वो पहले तो जब उसको गैसेस लेनी होती है तो ओपन हो जाता है, और गैसेस लेने के बाद क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जिसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है प्लांट्स में स्टेम के थ्रू किया जाता है। थ्रू स्टेम के थ्रू किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, हमें पता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिर वो प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वुडी स्टेम होती है, मैच्योर रूट्स होती हैं, तो ये जो एक्सचेंज होते हैं वो लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। स्टेम्स में लेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेंटिकल्स क्या होते हैं,
लेंटिकल्स जो होते हैं ये वो पार्ट होता है ट्री का, ये लूजली पैक्ड डेड सेल्स होते हैं जिनमें कि छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं लेंटिकल्स में, जो कि क्या करते हैं ट्रीज़ को यानी कि स्टेम के थ्रू हेल्प करते हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती हैं जिनकी वुड बहुत स्ट्रांग होती है, वुड ही स्ट्रांग होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो तना है, स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हार्ड है, और उनके लिए उनको सांस लेने के लिए इन लेंटिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन लेंटिकल्स में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम किया जाता है। ओके, लास्ट हमारा है इसमें रूट्स के थ्रू जो होते हैं प्लांट्स सांस लेते हैं थ्रू रूट्स में क्या होता है कि बहुत सारे रूट्स के अंदर भी बहुत सारे स्पेस पाई जाती है, गैप्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो कि क्या करते हैं कि सॉइल में से ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि उनकी जो आउटर, हमें पता है रूट जो होती है प्लांट की, रूट्स में क्या होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर, जब हमें बताया कि रूट जो होती है मेनली सॉइल में पाई जाती है, और वो सॉइल्स जो होते हैं उनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं रूट्स में। तो जो एयर यानी कि जो एयर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो उसी को रूट्स क्या करती हैं, उस एयर को लेने का काम करती हैं, अपने रूट हेयर्स से उसको लेती हैं, और उसी के रूट हेयर्स की हेल्प से ही ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर्स में एंटर कर जाता है, रूट हेयर के सेल्स में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जो होता है कुछ टाइम बाद, सेम टाइम में वर्किंग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारा ये चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है ये इसी के साथ यहाँ फिनिश होता है। इसमें हमने रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा है कि एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आपका वर्क ये है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 102 पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, आपको वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी नोटबुक में बनाना है। वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कलरिंग उसमें अच्छे से होनी चाहिए, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके साथ ही आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो आपको लिखनी नहीं है अपनी नोटबुक में, आपको बस ये सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, और एक बार ये चैप्टर खुद रीड करना है। अपने आप एक बार इस चैप्टर को रीड करें और फिर देखें कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों में कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आई है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट, अपने जो क्लासरूम का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर हमें ये डाउट है, तो आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको PDF की फॉर्म में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।